Hey guys, welcome to online lectures of Grid Tutorial. We have already started with the first topic of SP, Introduction to Corporate Finance, and we have already completed meaning, definition and importance of corporate finance. If you have not seen yet, just go through it so that you will come to know the basic concept of SP. So in today's session, we are going to see capital requirement. We are going to start with capital requirement. When a business entrepreneur conceive an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of idea is investigated. See, this is the first step which an entrepreneur has to take whenever he conceive an idea of setting up a business. जब भी उसको idea आता है for setting up a business, first he have to check, he have to see the commercial viability of the idea. उसको ये देखना पड़ता है कि उसका जो आइडिया है वो कितना सक्सेसफुल होगा, वो कमर्शियली वो कितना पॉसिबल है एंड वो कितना सक्सेसफुल होगा. तो सबसे फर्स्ट स्टेज है कि जब भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर है उसको कोई आइडिया आता है तो सबसे पहले उसे देखना पड़ता है कि वो कमर्शियली विएबल है या नहीं है, कमर्शियली वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. See, once an entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, that means that project is feasible, it can be the project, it is going to be success, then he will take up the other step to start the project. Now, as we all know, the first and the foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start and run business. See, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में भी देखा था, कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के पॉसिबल नहीं है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस. This task has to be performed with utmost care. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. See, ये जो task है ये बहुत important है. तो आपको जो corporate finance आप planning करते हो तो you have to make it keeping in mind present and future requirement of the business. आपको सिर्फ प्रेजेंट में कितने पैसे लगने वाले हैं आपको वो नहीं सोचना है. आपको फाइनेंशियल प्लान करते वक्त, आपको फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट करते वक्त आपको प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट जो बिजनेस की है आपको दोनों सोचना है. Thus, while taking decision about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital and working capital. See, while deciding about the volume of capital requirement, आपको कितना capital requirement है आपके बिजनेस के लिए, तो ये डिसाइड करते वक्त एंटरप्रेन्योर को दो चीजें वो कंसिडर करता है, दैट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अदर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस both the topic in detail, fixed capital requirement and working capital requirement. So let's start with the fixed capital requirement. Fixed capital is the capital which is used for buying fixed asset which are used for a longer period of time in the business. अभी fixed capital जो रहता है, fixed capital जो capital है, ये capital हम लोग यूज करते हैं कंपनी के फिक्स असेट परचेस करने के लिए जो कंपनी में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं. नेक्स्ट, द एसेट आर नॉट मेंट फॉर रिसेल. अभी जो फिक्स कैपिटल है वो रिसेल पर्पस के लिए नहीं होता है, वो कंपनी में फॉर लॉन्गर पीरियड इट स्टे इन द बिजनेस. इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रेफर टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट. इट स्टे इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली. से इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है? It refers to capital invested for acquiring fixed asset. It stay in the business for long period almost permanently. Fixed capital वो capital है जो business में invest होता है for acquiring, for purchasing fixed asset, और जो business में बहुत लंबे समय तक रहता है, almost permanently जो business में रहता है. Example of fixed capital are capital used for purchasing land, building, furniture, plant and machinery. अभी आपका जो कैपिटल फिक्स कैपिटल है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? इट इज इन्वेस्टेड
for purchasing land, building, furniture, plant and machinery. However, existing companies may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipment. अभी जो कंपनीज है उनको ये फिक्स कैपिटल उनको अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, एक्सपेंशन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट. फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी की जो मशीनरी है वो वेयर आउट हो गई है, वो टाइम के साथ खराब हो गई है, वेयर आउट हो गई है, वो कंप्लीटली उसका जो लाइफ स्पैन था वो खत्म हो गया है, तो इन दैट केस ऑल्सो कंपनी को फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है ताकि वो इक्विपमेंट्स को, मशीनरीज को वो रिप्लेस कर सके. इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर. फॉर दिस दे first prepare a list of fixed asset needed by a company and cost of this asset is estimated. So जो initially जो fixed capital की जो requirement है वो कौन डिसाइड करता है? वो प्रमोटर डिसाइड करता है. प्रमोटर इज द वन हु गेट द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, तो सबसे पहले जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग प्रमोटर करता है. फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स असेट नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दिस एसेट इज एस्टिमेटेड. तो सबसे पहले वो लोग कंपनी में जो भी फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो लोग उसकी लिस्ट रेडी करते हैं, एंड उसको वो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, परचेस करने के लिए कितने कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेट करते हैं. दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा. तो कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स एसेट इज कैलकुलेटेड एंड द रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म. अभी देखो जैसे इसमें वो लोग क्या क्या, इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. प्राइस ऑफ लैंड, आपको कोई लैंड परचेस करना है तो उसकी क्या प्राइस है, वहाँ पे अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको कितना कॉस्ट लगेगा. कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए कितना आपको फंड्स लगेगा. तो द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स एसेट इज कैलकुलेटेड. ये डिफरेंट फिक्स एसेट का जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट होता है, विच रिजल्ट इन द टोटल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म. और ये सारे एसेट जो आपको लगने वाले हैं इसका जो एस्टिमेट वो बनने के बाद जो कंपनी में टोटल फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चलता है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स एसेट which are used for a longer period of time in the business, or you can say that it stay permanently in the business. Fixed capital जो रहता है वो फिक्स असेट परचेस करने के लिए यूज होता है, जो फिक्स असेट रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते हैं, जो बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंटली रहते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? Working capital is the capital which is used to carry out the day to day business activity. अभी फिक्स कैपिटल आपने देखा जो फिक्स असेट परचेस करने के लिए यूज होता है, बट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है आपके डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको कंडक्ट करने के लिए. आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल that would be needed to ensure smooth functioning of business firm. अभी देखो आपका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई कि असेट परचेस करने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड परचेस करने के लिए, इस पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितने फंड्स आपको लगने वाले हैं. ऑन द अदर हैंड जो ये वर्किंग कैपिटल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. अभी A business firm require fund to store adequate raw material in stock. अभी देखो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा, तो आपको फंड्स लगेंगे रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, स्टॉक करने के लिए. अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अभी आपका जो रॉ मटेरियल है जब वो कन्वर्ट होगा रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस होगा एंड उसके बाद वो फिनिश गुड्स बनेगा, तो उसके लिए भी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो फिनिश गुड्स स्टॉक करने के लिए, उसको बनाने के लिए. इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट. अभी होता क्या है, हमेशा गुड्स कैश में सेल नहीं होता, बहुत बार गुड्स क्रेडिट बेसिस पे भी सेल होता है. तो जब गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल होता है तो
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू फेच कैश इमीडिएटली, तो जल्दी से वो पैसा इमीडिएटली नहीं आता है. Firm will have to arrange for funds till the amount is collected from the debtor. Cash is also required to pay. अभी भी आप क्रेडिट बेसिस पे आप गुड्स सेल करोगे तो आपको कैश इमीडिएटली नहीं आएगा, तो आपको फंड्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप दूसरे जो ओवरहेड कॉस्ट है, जो आपके ओवरहेड कॉस्ट इन सेंस आप समझो आपके वर्कर है उनके वेजेस पे करना है, आपकी कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करना है, लाइटिंग्स बिल पे करना है, तो जब तक आपका डेटर आपको पैसा नहीं देता, वो मीनवाइल जो टाइम है उसमें आपको कैश, आपको फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे ताकि आप ये ओवरहेड पे कर सको एंड आपका काम जो है वो आगे बढ़ सके. सिंस अनसर्टेनली इट इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. से बहुत बार अनसर्टेनिटी होती है, कोई इमरजेंसी आ गई, किसी तरह का लॉस हो गया, तो इन दैट केस यू शुड हैव सम एक्सेस कैश टू मीट दैट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे ये जो मीनवाइल टाइम में जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट है ताकि आपका बिजनेस स्मूथली रन हो सके, आपका मैन्युफैक्चरिंग काम जो है वो रन हो सके आपको, तो ये दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. ये वर्किंग कैपिटल, इन शॉर्ट वी कैन से दैट वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी. आपको रॉ मटेरियल लेने के लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं, आपको एक्सपेंसेस पे करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं. अगर आप अपने वर्कर को आप वेजेस पे नहीं करोगे तो दे विल नॉट वर्क, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क. आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करोगे, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्सपेंसेस जो है उसको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मीनवाइल जब तक आपका डेटर आपको पैसा नहीं देता तब तक आप वेट नहीं कर सकते हो. तो ये सब टाइम पीरियड के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ये सब चीजों के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. आपको कैश, आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है. तो दैट इज वर्किंग कैपिटल. So in short we can say that working capital is the capital which is used to carry out the day to day business activities. Working capital ऐसा capital है जो आपका day to day activities complete करने के लिए जरूरी होता है. Now we are going to see the cyclical flow of working capital. ये working capital का cycle flow कैसे होता है. A business firm need fund to finance its working capital need. Prominent share of this fund is used to buy raw material and remaining part is kept available to pay wages and expenditure. जैसे हमने लास्ट में जैसे हमने वर्किंग कैपिटल की जो मीनिंग है उसमें पढ़ा था, अ फर्म नीड फंड, कंपनी को हमेशा फंड्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो लोग रॉ मटेरियल परचेस कर सके. तो ये जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है ये दो चीजों के लिए यूज होती है. एक तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, और जो उसका रिमेनिंग पार्ट है इट इज अवेलेबल, इट इज केप्ट टू पे वेजेस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट इज द वर्किंग कैपिटल विच वॉज इन फॉर्म ऑफ कैश इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेंट्रीज. अभी देखो यहाँ पे कैश है, अभी आप डायग्राम देखो, कैश है देन उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो वर्किंग कैपिटल है, जो कैश है, उसको आप इन्वेंट्रीज में कन्वर्ट करते हो. इन्वेंट्रीज मतलब रॉ मटेरियल, उसको आप रॉ मटेरियल मतलब वो कैश से आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो. रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोसेस एंड देन टू फिनिश गुड्स. और जो रॉ मटेरियल है वो वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट होता है एंड देन इनटू फिनिश गुड. तो मतलब देखो अभी तक देखो, पहला आपके पास कैश है, फंड्स है जिसको आपने यूज किया. किसमें यूज किया है? आपने रॉ मटेरियल परचेस करने में यूज किया है एंड वो वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल गेट कन्वर्टेड इनटू इन्वेंट्रीज, स्टॉक. जो रॉ मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट होता है? स्टॉक में कन्वर्ट होता है. विद द सेल ऑफ फिनिश गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल प्रिज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. अभी देखो जब फिनिश गुड्स को आप बेचते हो तो बहुत हमेशा आप कैश बेसिस पे बेचते हो या तो क्रेडिट बेसिस पे बेचते हो. तो जब आप फिनिश गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे बेचोगे तो वो क्या होगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू
अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब है कि जो अकाउंट रिसीवेबल है मतलब वो पैसा आपको फ्यूचर डेट में कभी मिलेगा। नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल है मैच्योरिटी ऑफ स्पेसिफिक डे आफ्टर बिलिंग, जो अकाउंट रिसीवेबल है उसका कुछ डेट होता है एंड उसी डेट पे आपको वो जो पैसा है वो अवेलेबल होता है। कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल ब्रिंग बैक द कैश, और जब वो अकाउंट रिसीवेबल जो कैश पेंडिंग कैश है जब आप उसको कलेक्ट करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, आपके पास कैश आ जाएगा। अ पार्ट ऑफ कैश में बी यूज टू पे क्रेडिटर, पे इनकम टैक्स एंड डिक्लेयर डिविडेंड एंड रेस्ट इज पुट इनटू द सर्कुलेशन अगेन। जो पैसा आता है उसमें से आप क्रेडिटर्स को पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, और जो अमाउंट बचता है जो रिमेनिंग कैश है वो आप फिर से इनटू द साइकिल आप इन्वेस्ट कर देते हो। इस साइकिल जो है इट इज वेरी सिंपल। जो कैश है आप उसको यूज करते हो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करने के लिए। रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वेजेस जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, ये सब भी पे करना पड़ता है। तो कैश जो है आप उसको रॉ मटेरियल परचेस करने में यूज करते हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करते हो। अभी जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस होता है, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू इन्वेंट्रीज। वो क्या बनता है, फिनिश गुड्स बन जाता है। अब आप जब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आप जब सेल कर रहे हो तो या तो आप कैश सेल्स करोगे या तो आप क्रेडिट सेल्स करोगे। जब आप क्रेडिट सेल करोगे तो इन दैट केस जो पैसा है इट इज गोइंग टू गेट रिसीव्ड इन फ्यूचर डेट। जो पैसा आपको आने वाला है वो फ्यूचर डेट में मिलेगा। तो अभी जब वो पैसा आता है, जब वो फ्यूचर डेट पे जब वो पैसा कलेक्ट होता है तो कुछ जो पार्ट है वो यूज होता है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, इनकम टैक्स को पे करने के लिए, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। अभी क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है, आप उनको पे करोगे, डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, और जो बाकी जो पैसा है आप फिर से उसे इनटू द साइकिल आप फिर से उसे यूज करोगे। तो ये आपका साइक्लिक फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कर सके। नाउ वी आर डन विद दिस साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, साइक्लिक फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द distinguish between fixed capital and working capital. After studying this your topic will get very clear. Now fixed capital and working capital. First point is meaning. Fixed capital refer to any kind of physical asset. Fixed जैसे हमने पढ़ा है, fixed capital refer to any kind of physical asset. Fixed capital कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, वो इन्वेस्ट होता है फिक्स असेट परचेस करने के लिए। वर्किंग कैपिटल रेफर टू सम ऑफ करंट असेट। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, सम ऑफ करंट असेट, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपका डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज नेचर। वेरी सिंपल, फिक्स कैपिटल है, इट इज ऑलमोस्ट परमानेंटली इन द बिजनेस, इट स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप चेंजिंग। जैसे आपने साइक्लिकल फ्लो में देखा है, वो सर्कुलेटिंग कैपिटल है एंड वो इट कीप्स चेंजिंग। देखो पर्पस, फिक्स कैपिटल इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। जो पर्पस है फिक्स कैपिटल का, फिक्स कैपिटल का जो पर्पस है, मेन पर्पस उसका है इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, वो हमेशा फिक्स असेट में इन्वेस्ट होता है। वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। जैसे आपने अभी देखा साइक्लिकल फ्लो में वर्किंग कैपिटल जो है वो हमेशा शॉर्ट टर्म असेट में यूज होता है, जैसे कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल। जब आप ऑन क्रेडिट जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो जो पैसा आपको बाद में मिलने वाला है दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री आपका जो फिनिश स्टॉक है, तो वर्किंग कैपिटल हमेशा फिनिश स्टॉक ये सब चीजों के लिए यूज होता है। नाउ सोर्सेस, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन। अभी जो फिक्स असेट है, फिक्स कैपिटल है, वो हमेशा कहाँ से, उसके फंड्स कहाँ से आते हैं, बाय सेलिंग शेयर, डिबेंचर। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, हमेशा फिक्स कैपिटल के जो फंड्स है वो हमेशा वहां से आते हैं। वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट। वर्किंग कैपिटल, अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप शॉर्ट टर्म लोन, कंपनी जो है वो हमेशा प्रिफर करती है शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट। मतलब ये सारी चीज़ें, ये जो आपने
टर्म्स भी देखे हैं, ये सब शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो जो फिक्स कैपिटल के लिए जब आपको फंड्स चाहिए तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला ही देखोगे, एंड वर्किंग कैपिटल के लिए जब आपको फंड्स चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, आप जनरली वहां से आप पैसा क्या करते हो, फंड करते हो। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। सी नाउ पीपल दे डू इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। जो इन्वेस्टर है वो पैसा इन्वेस्ट करते वक्त वो क्या सोचते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। जो इन्वेस्टर है वो हमेशा फिक्स कैपिटल में वो हमेशा इन्वेस्ट करता है ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न। जो इन्वेस्टर है वो वर्किंग कैपिटल में वो इन्वेस्ट करता है सो दैट ही कैन गेट इमीडिएट रिटर्न। मतलब वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है। जैसे आपने पढ़ा है कि ये जो नेचर है वर्किंग कैपिटल का नेचर है, इट कीप्स चेंजिंग एंड वो परमानेंटली नहीं रहता। तो हमेशा जो इन्वेस्टर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं इनका मोटिव होता है टू गेट इमीडिएट रिटर्न। लास्ट वन इज रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क। जो फिक्स कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसमें, एंड जो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है इट इज़ लेस रिस्की बिकॉज ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है तो इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होता, बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व होता है। एंड फिक्स कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई रिस्क प्रोडक्ट होता है। सो नाउ वी हैव सीन डिस्टिंग्विश ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल है जो हमेशा असेट्स में इन्वेस्ट होता है, वर्किंग कैपिटल है इट इज सम ऑफ करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट है नेचर। फिक्स कैपिटल जो है वो बिजनेस में परमानेंटली रहता है। वर्किंग कैपिटल जो रहता है इट कीप्स सर्कुलेटिंग, इट कीप्स चेंजिंग। पर्पस, फिक्स कैपिटल का पर्पस है फिक्स असेट में इन्वेस्ट होता है, एंड वर्किंग कैपिटल का पर्पस है जो शॉर्ट टर्म जो असेट है, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मिलने के लिए वर्किंग कैपिटल यूज होता है। नेक्स्ट है सोर्सेस। फिक्स असेट है, आप रेज कर सकते हो, आप फंड्स फिक्स असेट के लिए आप फंड्स कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम सेलिंग शेयर डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। और वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट। जो इन्वेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इन्वेस्टर्स है वो फिक्स कैपिटल में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। उनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रहती है तो वो फिक्स कैपिटल में वो इन्वेस्ट करते हैं। और जो इन्वेस्टर है जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिटर्न, उनको जल्दी से जल्दी रिटर्न चाहिए, तो इन दैट कंटेक्स्ट वो लोग वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट वन इज रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर इम्प्लाइज लेस रिस्क। जो फिक्स कैपिटल है वो ज़्यादा रिस्की है एंड वर्किंग कैपिटल जो है वो लेस रिस्की है। I hope you are very clear with the topic fixed capital and working capital. And जैसे मैं सबको पहले भी बोला है मैंने, in my every session I tell you, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो you can contact me. I hope आपको सब समझ में आ रहा है. With this I end my lecture and thank you so much.